Hello everyone. Hope you are enjoying the classes of Rendezvous with English. I hope you have been enjoying the test match also, the WTC final. It's very engrossing, although India ended on a disappointed note. But let's see, let's hope for the best that India wins the WTC final. There is a long way to go for India. India has to remove the deficit, whatever score the Australian team is going to put, challenge them. Let's see what happens further. But I wish Indian team wins. We were studying synthesis. Today is the sixth part of this chapter, synthesis. We have already studied about हम कौन-कौन से kinds पढ़ चुके हैं, हम कौन-कौन से kinds पढ़ चुके हैं, हम already पढ़ चुके हैं. We have already studied simple and compound. So today we are going to study complex. Okay? आज हम complex sentences पढ़ेंगे. Complex sentence क्या होते हैं? एक बार जब simple sentences बता रहे थे, then I told. तो complex sentence क्या है? Complex sentences are those where there is a main clause and there is a subordinate clause. Okay, let's see what is the main clause and what is the subordinate clause. ठीक है? एक main clause जिसको principal clause भी बोलते हैं, ठीक है? It is also known as principal clause and there is a subordinate clause. ठीक है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. सबऑर्डिनेट का मतलब जो डिपेंडेंट हो, लाइक वी वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस. जो लोग काम करते हैं उसमें कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ उनके जूनियर्स होते हैं. जूनियर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट्स. तो जो दूसरों के डायरेक्शंस पर, गाइड पर निर्भर हो फॉर हेल्प, दैट इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट. ठीक है, तो लेट्स सी what is a complex sentence. As I told you, a sentence which has one main clause and one or more than one subordinate clauses. जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, the easy one, if it rains I will dance. ठीक है, if it rains I will dance. बारिश में नहाते हैं ना, मजा आता है. जब तेज बारिश होती है, बारिश होने के भी अलग अलग वर्ड्स हैं. it patters, there is another word for heavy rainfall, that cats and dogs, okay, is drizzling. तो बताएंगे आपको, वो भी बताएंगे vocabulary section में. पहले इस पे फोकस कर लेते हैं. if it rains I will dance. तो अब इसमें क्या है कि देखिए ये पार्ट दिया हुआ है if it rains. if it rains का मतलब अगर बारिश होती है. तो अगर बारिश होती है में क्या है कि मीनिंग जो है इसका इनकम्प्लीट है. ठीक है, तो मीनिंग इनकम्प्लीट है, इसलिए इस पार्ट को चाहिए मीनिंग कंप्लीट करते. तो जिस पार्ट में मीनिंग इनकम्प्लीट होगी, द पार्ट विच इज गिविंग एन इनकम्प्लीट मीनिंग इन अ सेंटेंस is called subordinate clause, and the part which is giving a complete meaning, which is not dependent on other part to complete its meaning, is the main clause. ठीक है, तो ये क्या है, ये principal clause या main clause है, और ये क्या है, ये subordinate clause है. There is another way of identifying the complex sentence is कि जहां कहीं से भी कंजंक्शन शुरू होती है सेंटेंस में. अब इस सेंटेंस में कंजंक्शन कहां पर है, ये है कंजंक्शन. तो ये कोई जरूरी नहीं है that the conjunction will be always in the middle of the sentence. It can be in the beginning of the sentence as well. एक सेंटेंस और देख लेते हैं to understand what is a complex sentence. फिर noun clause पढ़ेंगे. ठीक है, तीन काइंड्स हैं complex sentences को ज्वाइन करने के लिए: noun clause, adjective clause and adverb clause. We'll be studying today noun clause, right? Another sentence, for example, when the sun rose, फिर क्या हुआ, the birds, when the birds rise, present में बना लेते हैं. when the sun rise, the birds chirp. जब सनराइज हुआ तो चिड़ियां चहचहाने लगी. so इसमें क्या है, सेंटेंस पार्ट जो है, ये जो क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट और वर्ब दी हुई है. क्लॉज क्या बताया था हमने शुरुआत में, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग.
That is why it is different from a sentence. Birds chirp, चिड़ियां चहचहाती हैं, complete meaning दे रहा है ना, जबकि when the sunrise is not giving the complete meaning. So when the sunrise is a subordinate clause and this one is the main clause. और इसमें when का use भी हुआ है which is a conjunction. जितने भी relative pronouns हैं या WH वाले वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, when, who, whose, why, where, ठीक है, ये जितने भी कंजंक्शंस हैं इनका यूज प्रोनाउंस का एज अ कंजंक्शंस करते हैं. कंजंक्शन शुरुआत में भी यूज हो सकती है, इन द मिडिल. सो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which is dependent is subordinate clause and the rest one is main clause. So finally कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जिसमें एक डिपेंडेंट यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से ज्यादा है और एक मेन क्लॉज. मेन क्लॉज हमेशा एक होगा एंड द अदर वंस विल बी डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होगा. और इजी वे ऑफ आइडेंटिफाइंग इज जहां से कंजंक्शन शुरू होती है वहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नाउन क्लॉज. ठीक है, नाउन क्लॉज की तरफ चलते हैं. नाउन क्लॉज क्या है? व्हाट इज अ नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्या होती है? नाउन होती है समथिंग विच गिव्स द नेम, विच टेल्स द नेम ऑफ समथिंग, जो किसी चीज का नाम बताती है, इज अ नाउन. सो नाउन क्लॉज का काम क्या हुआ? व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज? द एक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज विल बी to give information. Noun जैसे नाम है, my name is अंकुर. So what it tells, अगर मेरा नाम है तो क्या मेरे बारे में information दी? That I am अंकुर. Okay. उसी तरीके से the part of the sentence which is conveying certain information is noun clause. तो इसमें join करने के लिए जितने भी WH words हैं उनको और that को हम use कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए. We can make use of them. So let's see certain sentences. कैसे ज्वाइन करेंगे नाउन क्लॉजेस को? I hope you are enjoying. Then today I am going to tell you a very very interesting fact of and very nice story you can say of a famous personality which can really motivate you, which can tell you that how success depends on perseverance and determination. So it is certain he is a great singer. तब इसको ज्वाइन क्या करेंगे? इसमें क्या सर्टेन है? इट इज सर्टेन कि वह ग्रेट सिंगर है. सो द वन वे ऑफ ज्वाइनिंग नाउन क्लॉजेस इज कि हम WH वर्ड्स का यूज कर सकते हैं या दैट का यूज कर सकते हैं और क्या? और ये कि इसमें एक पार्ट इंफॉर्मेशन देगा. द पार्ट विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट. सो जब हम लिखेंगे इसको ज्वाइन करने के लिए, जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको बाद में लिखेंगे और जो चीज बताई जा रही है वो पहले लिखेंगे. तो इस पार्ट की इट इज सर्टेन, क्या सर्टेन है? कि वो ग्रेट सिंगर है. तो इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में दी गई, तो पहले हम इस सेंटेंस को लिखेंगे इट इज सर्टेन और फिर हम क्या लिखेंगे? दैट. इट इज सर्टेन दैट ही इज अ ग्रेट सिंगर. ठीक है, तो इट इज सर्टेन, व्हाट इज सर्टेन? दैट ही इज अ ग्रेट सिंगर. तो ये की, क्या, क्यों ऐसे क्वेश्चंस को भी हिंदी में आंसर करता है. मोस्टली इंग्लिश में व्हाट क्वेश्चन को आंसर करेगा जो पार्ट. सो वहां पर क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा. समझ में आया? इट विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट. ओके, नाउ सी लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. She is an intelligent girl. Okay, she is an intelligent girl और ये सबको पता है. It is known to all. तो क्या सबको पता है? किस सेंटेंस से पता लग रहा है? ये. और इंफॉर्मेशन किसमें दी हुई है? इसमें. तो जिस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सेंटेंस हमेशा बाद में आएगा और
वो दूसरा सेंटेंस पहले लिखा जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, इट इज नोन टू ऑल, फिर क्या करेंगे, वी विल बी एडिंग कंजंक्शन दैट, और फिर इसको लिख देंगे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए कितना आसान है जोड़ना। तो जो भी पार्ट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है उसको बाद में लाएंगे, ठीक है। Okay, understood? So this is how we will be joining the complex sentences into noun clause. ठीक? एक और सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन वाला, जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ हो। I hope you are understanding. Then we are going to come to the next one very soon. Please tell what is a motive. तो दो सेंटेंस हैं, प्लीज टेल व्हाट इज अ मोटिव। अब इसको हम ज्वाइन करते समय क्या करेंगे, क्या बताना है, प्लीज टेल, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी डब्ल्यू दिया हुआ है तो हम इसको सीधे सीधे ज्वाइन कर लेंगे, प्लीज टेल व्हाट इज अ मोटिव। ठीक है, तो ये किसमें ज्वाइन हो गया, देखिए WH वर्ड का यूज हो गया, इट जॉइंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, समझ में आया। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, सेकेंड है एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज बताने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। यू विल डेफिनेटली फील दैट हाउ many efforts one has to put in order to be successful. This is the story of the famous भारत रत्न अवॉर्डी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी, जी हाँ, मैं इनकी कहानी आज आपको छोटी सी स्ट्रगल की कहानी बताना चाहूंगा। ये जब बहुत छोटी थी तो she was very very desirous of being a singer, बट इनके फादर बहुत ज्यादा अपोज करते थे इस बात को। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि ये गाना गाएं। इन्होंने बहुत कम उम्र में 10 या 11 वर्ष की उम्र में, इसका कोई तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है ऑन रिकॉर्ड, so the exact age is not known. She at 10 or 11 years of age sang the first song for the movie कीर्ति हसाल। ठीक है, वसंत जोगलेकर की मूवी थी, उनमें इन्होंने गाना गाया। इनके पापा को पता लगा, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आई। उन्होंने वसंत जोगलेकर जी से बात करके, जो कि डायरेक्टर थे, उस गाने को ड्रॉप करा दिया। ठीक, फिर उनका गाना बंद हो गया, she stopped singing. Now when she was 13 years old, her father died. उनके पापा की मृत्यु हो गई। At that time, when her father died, she was living in a very very penurious state. Penurious means very very poor. ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पेन्यूरियस, बहुत गरीबी थी। तो उनके पास खाने को पैसे नहीं थे घर में। ऑल्दो वो एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनको एक्टिंग करने का मौका मिला। शी डिडंट वांट टू बी एन एक्ट्रेस, लेकिन उनको एक्टिंग करने का मौका मिला। तो क्योंकि पैसे नहीं थे, खाने को पैसे नहीं थे, because father was no more and there was no one else to earn, so she resorted to acting. उन्होंने एक्टिंग शुरू की। ठीक है, उन्होंने काफी सारी मूवीज में काम किया, हिंदी और मराठी, जैसे बड़ी माँ, जीवन यात्रा और छत्रपति शाहू जी एटसेट्रा, बहुत सारी मूवीज में काम किया। ठीक, फिर इसके बाद एक बार फिर आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 या उसके बाद शायद, तो इसमें इनको एक बार फिर से गाना गाने का ब्रेक मिला। वसंत जोगलेकर जी ने ही इनको फिर से मौका दिया, इन्होंने कुछ मूवीज में गाना गाया। इन वन ऑफ द मूवीज which was very very famous, महल, जो
हॉरर मूवीज थी, थ्रिल, एक्साइटमेंट, द टेरर, that kind of fear which was there, जो उस टाइम की मूवीज का था, जो बहुत ज्यादा पैराफर्नालिया, कैमरा ट्रिक्स अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम की एक मूवी में मधुबाला जी, वो की उस समय की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस थी, उनकी मूवी के लिए गाना गाया उन्होंने, वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ, एंड देयर आफ्टर शी went on to become a successful singer। और कौन सा गाना गाया उन्होंने? आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा, ये गाना बहुत फेमस हुआ, and she topped the charts, the song became a super hit, and thereafter she never looked back। तो देखिए कितनी स्ट्रगल की उन्होंने लाइफ में, एक ऐसी स्थिति थी, there was such a situation where there was nothing to eat in the house। so इस तरीके की सिचुएशन आती है घरों में, और इस तरीके की सिचुएशन लाइफ में आती है, तो we should never feel bogged down। हमको कभी भी डिसअपॉइंटेड, डिप्रेसिंग नहीं फील करना चाहिए, सोचना चाहिए we will rise from the ashes as the phoenix rises, कि हम फिर से उठ खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, and the one who is a fighter always wins। ठीक है, I hope you enjoy this story। Now let's move towards the adjective clause। देखते हैं adjective clause क्या है ना? Adjective clause क्या है? तो what is an adjective? Adjective which qualifies a noun or a pronoun। तो इसमें भी जितने भी WH वाले words हैं, pronouns हैं, वो उन सभी का यूज करेंगे। ठीक है, और ये सबसे इजी है क्लॉज आइडेंटिफाई करने में और ऐड करने में। देखिए दिस इज द हाउस एंड आई लिव हियर। दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दिस इज द हाउस, आई लिव हियर। तो पहले सेंटेंस में क्या बताया गया? ये घर है। दूसरे सेंटेंस में क्या बताया गया? घर में मैं रहता हूं। ठीक है, तो किसके बारे में? ऑब्जेक्ट। जितने भी एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी नेक्स्ट सेंटेंस में। क्लियर? Is it clear? The information about the object will be given, and what you have to do is simply place a WH word, who, whose, whom, why, ठीक है, WH word after the noun or the pronoun given। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये सबसे इजी है। This is the, sorry, this is the house, और क्या लिखेंगे? वेयर, हाउस के लिए क्योंकि प्लेस है, मैं यहां रहता हूं, वेयर आई लिव, बन गया। तो ये हाउस है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, कौन सा हाउस है? जहां मैं रहता हूं। सो इट बिकम्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए कितनी आसानी से बन गया, समझ में आया? सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट आफ्टर द ऑब्जेक्ट वी विल प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द सेकंड और द थर्ड सेंटेंस। एक सेंटेंस और देख लीजिए फटाफट। vocabulary भी बतानी है आपको। I have not told you yet the two words of today। Second sentence is she brought a car। और देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? The car is expensive। अब you yourself see, आप खुद देखिए। I hope you are understanding what is told। ऑब्जेक्ट है ना? she bought, उसने क्या खरीदा? what did she buy? she bought a car। and what is told in the second sentence? the information about the object। so how we will be joining? we will be joining she brought a car, और कार के लिए क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगी? which, ऑलरेडी लिखा हुआ WH वर्ड which, और क्या है? is expensive। ज्वाइन हो गया, समझ में आया? तो adjective clauses are the easiest to join। she brought a car which is expensive। so right after the object we'll be placing the relative pronoun, the WH word, and we'll writing the remaining clause, that is the verb plus the subject। okay, now subject plus verb जैसा भी होगा, पहले verb ही mostly आती है। ठीक है, I hope the adjective clause is clear to you। समझ में आया? noun clause और adjective clause। ठीक है, now I hope you are enjoying, I hope you are understanding the clauses। now let's see the final section of
today two important vocabulary words. The first one is zoo, जिसके लिए अभी एक गाना गा के सुनाया था, doppelganger. ये क्या है? What is doppelganger? Doppelganger is ghost of a living person. Living person का ghost ये भी कहीं होता है? Yes, होता है. When a person is illegally shown in the records that he has died and is actually living. लोग प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर डेड कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं. So in that scenario, a person is declared as dead. Okay, so doppelganger is ghost of a living person. तो उसका यूज कैसे कर सकते हैं? I met a doppelganger in court submitting application. ठीक है? The marker is creating problem. I will buy another one tomorrow. I met a doppelganger in court submitting application. ठीक है? Next word है जो बहुत इजी सा है, मैंने आज चूज किया है इसको क्योंकि ये वर्ड गलत बोला जाता है. जैसे एज आई टोल्ड यू द वर्ड वैक्यूम, जिसकी स्पेलिंग मोस्टली लोग गलत लिखते हैं. आई होप यू रिमेंबर द स्पेलिंग. व्हाट इट वाज? यस, यू आर राइट. इट इज VACWM. सो दिस इज कैल्शियम. इसको लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? कैल्शियम. जैसे नमस्कार बोलते हैं, जबकि होता क्या है? नमस्कार. शाह तो नहीं होता है ना डिफरेंस? एक शाह ये होता है, एक सा ये होता है, ये वाला होता है नमस्कार, है ना? तो उसी तरीके से दिस इज कैल्शियम. देयर इज नो शाह हियर, दिस इज सा. सो द प्रोनाउंसिएशन इज कैल्शियम. एस है. ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड. सो दिस इज these two words. Remember, first one is doppelganger and second word is calcium. The next two words will be in the shorts in the amazing vocabulary section. So I'm telling you 4 words every day. Make your vocabulary strong. I hope you enjoyed the life history, a short story of Lata Mangeshkar, and saw that कितने ये जितने भी आप एक्टर्स देखते हैं, इरफान जो नहीं रहे, हमारे शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, ये छोटे छोटे रोल्स से आए हैं. पंकज मिश्रा हैं, बहुत छोटे छोटे रोल्स में सर्वेंट का रोल करते थे, भिखारी का रोल करते थे. ऐसे ही नहीं है, इतने बड़े स्टार्स बन गए हैं. बोमान ईरानी वाज अ ड्राइवर, okay, a chauffeur. So इस तरीके से इस परिस्थितियों से they have come from very very tough circumstances, but they got a break, they got a chance and they grabbed it with both hands. दोनों ही हाथों से उसको कबूल किया और उस पर बहुत मेहनत की. तो आप भी मेहनत करिए, हम कराएंगे, हम आपके साथ मेहनत करेंगे. We will together make it successful. We will together make the difference. That's it for the day. Good day. If you think my video, my teaching is worthwhile, it is benefiting you in any way, then please be noble, please be kind, and do like, subscribe and share. It will be very very nice gesture on your part. Thank you very much. Bye bye.